हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हेन ह्यूमैनिटीज़ इज़ लाइफ। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्लास 12 लीगल स्टडीज़ की यूनिट 6 जो कि है लीगल सर्विसेज। इस चैप्टर से काफ़ी हद तक बहुत कुछ डिलीटेड है और जो भी है आपके सिलेबस में अब 2022 से वो बहुत ही ईजी भी है, साइंटिफिक भी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है जो कि अपरेंटली आपके सिलेबस में नहीं है, बट यू विल रिक्वायर दीज थिंग्स वाइल यू आर राइटिंग आंसर्स। सो फर्स्ट वी कम टू लीगल एड. What do you mean by legal aid? People having limited funds or means should be given grants, मतलब कुछ पैसे, nominal fees advice, उनसे कहा जाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वट विल बी द प्रोसीडियर्स, दैट्स एडवाइस. सुझाव जिसे हम कहते हैं काउंसिल, विच मीन्स अ लॉयर टू रिप्रेजेंट देम इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स. तो ये डेफिनेशन जो है ये आप मेमोराइज कर लो, ठीक है. नेक्स्ट वी कम टू लीगल सर्विसेज. लीगल सर्विसेज मतलब क्या? लीगल सर्विसेज मीन्स टू प्रोवाइड लीगल एड टू द पोर. ये जो लीगल एड है यही देना which is done by the state. The duty of the state is to grant legal services, to make arrangements for the services and provisions for granting legal aid. तो यही है. Next we come to the most important part of your syllabus, which is Article 39A. I hope the screen is visible. In case it's not, then you can increase the resolution of the video by going to the settings. So Article 39A, it was inserted by the 42nd Amendment Act of 1976. Clearly जब इंदिरा गांधी रूल कर रहे थे हमारे देश पे, then it was enacted. जब भी आपको ए दिखे किसी भी आर्टिकल के बाद तो आप मान लेना कि वो अमेंडमेंट है. These small things should be clear by now. Now, Article 39A offered remedy to the problem of legal aid to the poor by directing the state to provide free legal aid by suitable legislations and schemes. Why? To ensure that opportunities to secure justice are not denied to any citizen because of economic or other disability. सिर्फ एक आदमी पोर है, इसी वजह से उनकी जो राइट है टू एक्सेस द कोर्ट, टू गेट जस्टिस, ये सब डिनाई नहीं होना चाहिए. अब क्या कर सकते हैं हम? To provide that equal opportunity, the state needs to grant legal aid by suitable legislations and schemes to the poor individuals in our country. यही है हमारे आर्टिकल 39A. अब ये चैप्टर में घुमा फिरा के यही जो आर्टिकल है वो बार बार आने वाले हैं. Right? Next we come to the legal background to the chapter, to the concept of legal services and legal aid. This is nothing, just the legal provisions which is mentioned in our constitution. पहला पॉइंट आप ये बनाएंगे कि ना पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, it's ensured that the impartial justice is made available at the doorsteps of the poor and economically weaker sections. जो भी poor है हमारे, उनके पास ये access होना चाहिए. Just because they belong to a lower caste, lower creed and some other religion apart from what the majority has, उनको ये सारे rights जो है it shouldn't be taken away from them. That's the first point you are going to write. And next point is very important. One of the main important features of any democracy is the creation of a condition where citizens can easily access the courts. ये जो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड इंक में रेड में लिखा गया है ये एक मस्ट मेंशन पॉइंट है. उसके बाद आप ये लिखेंगे कि denying access to justice results in vigilantism and violence. जब हम लोगों को ये राइट नहीं दे पाते कि वो पीसफुली अपने डिस्प्यूट को सेटल करे, तभी जितने भी वायलेंस होते हैं इट अकर्स. एंड एक और थर्ड पॉइंट है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये आप लिख लो आपके कॉपी में कि एन इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ द गार्डियन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. ठीक है. नेक्स्ट, इसके बाद 3 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं. आर्टिकल 14 आप मतलब ये आर्टिकल 14 और 15 दोनों ही आप ह्यूमन राइट्स के चैप्टर में बहुत अच्छे से कर चुके हैं. आर्टिकल 14 which mentions that the state shall not deny to any person equality before law and equal protection of law. ये दोनों चीज़ें हमेशा होनी चाहिए and that's given in article 14. Next, article 15, the state shall not discriminate anyone on the basis of RRCSP. मतलब क्या? Religion, race, caste, sex and place of birth. इसमें एक और चीज़ है कि they cannot be prohibited from going to public places. वो यहाँ पे इतना important नहीं, that's why it's not mentioned.
Apart from these two articles, we also have Article 39A, which is clearly a directive principle of state policy, and it offered remedy to the problem of legal aid. यही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, आर्टिकल 39A. ठीक है, सेम पॉइंट्स है, आगे भी आने वाले हैं ये. नेक्स्ट, अनदर पॉइंट, लास्ट पॉइंट हियर अंडर दिस टॉपिक ऑफ लीगल बैकग्राउंड, वो ये है कि द फाउंडेशन ऑफ लीगल एड is the concepts of human rights and human dignity. To preserve these two, we need to provide legal aid to the poor. Now we come to the next part, the Indian legal system. What do we have here? We have the adversarial system. यहाँ पे क्या होते हैं? एक तो neutral judge होते हैं, and there are two parties here. Two parties who represent their cases before the judge. यही system है इंडिया में. We are a common law country and we follow adversarial model. अब यहाँ पे देखो, जो भी access to justice है वो difficult है. क्यों? क्योंकि हमारे जो lawyers है वो अपने पैसे लेते हैं पार्टीज से. एक कोर्ट में अपने केस को रिप्रेजेंट करने के लिए पैसा लगते हैं. दे टेक contingent charges, though they shouldn't charge like that, but still there is a lot of cost of all these things. अब इसी वजह से it's said that in India justice is not given but sold, and the cost of justice delivery falls on the parties. हम जो भी है, हमें बहुत सारे पैसा खर्च करने के बाद ही जस्टिस मिल सकते हैं, इसीलिए हमारे पास वो पैसा होना ज़रूरी है. इफ़ आई एम अ पुअर पर्सन, तो कैसे हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट में? एंड दैट्स वेयर द स्टेट कम्स इन. The state's role to give justice to me, the state's role and responsibility to give me legal aid comes in. ठीक है, आप समझ सकते हैं कि क्यों लीगल एड देना इतना ज़रूरी है. आई होप. नेक्स्ट, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है रादर, द M.H. Haskard वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस विच वॉज फॉट इन 1978. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि हमारे देश में अब जो जुडिशरी है इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश, इट रिक्वायर्स लॉयर पावर. लॉयर्स की जो नखरे नहीं है, मतलब उनको पैसा देना पड़ता है फॉर रिप्रेजेंटिंग अस. ये जो सारी चीज़ें हैं, इंट्रिकेसीज है, एंड प्रॉब्लम्स लाइक ब्राइबरी, करप्शन, पॉवर्टी, ये जो सारी चीज़ें हैं, दैट मेक्स एक्सेस टू जस्टिस डिफ़िकल्ट. पहले क्या होते थे, जब हम अपने हिसाब से चलते थे, व्हेन द ब्रिटिश डिड नॉट कम इन इंडिया येट, वी आर टॉकिंग अबाउट द 16th एंड द 17th century, तब क्या होते थे, the justice delivery mechanism was informal and easy to access. तब पंचायत रहते थे या फिर बहुत ही ज़्यादा informal चीज़ें होते थे. We knew the person who is the judge. They used to adjudicate the dispute in a known language to us, in a regional language. इसीलिए इतना ज़्यादा difficult नहीं थे process. But अब, because of this adversarial system, because of the fact that we follow common law system, there are a lot of issues. ठीक है, that's why legal aid becomes essential. Access to justice is essential for implementation of all human rights. In the modern adversarial judicial system, access to justice is difficult. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होते हैं. एडवोकेट्स की एक्सपेंडिचर है, कोर्ट में एक रजिस्टर्ड केस करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है. दैट्स वाई राइट टू लीगल एड स्टैंड्स फर्स्ट इन द स्पीसी ऑफ ह्यूमन राइट्स. ऑलराइट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. मतलब आपको ये एक सेंटेंस दे देंगे और आपको जस्टिफाई करने के लिए कहेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें लिखना है. कैसे M.H. Haskard केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था, यहाँ पे थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन भी देंगे. ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू लीगल एड बाय द स्टेट. ये जो लीगल एड की कॉन्सेप्ट है, हाउ डिड इट इवॉल्व, दैट्स द कंटेंट ऑफ दिस पोर्शन. अच्छा, इसके पहले आपके यहाँ एक छोटा सा पार्ट है विच आई हैव रिटन डाउन हियर, लीगल एड अंडर क्रिमिनल लॉ. इंडिया में क्रिमिनल लॉ में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल्स में लिखा गया है कि लोगों को लीगल एड देना है, दोज हु आर अक्यूज्ड. नाउ सेक्शन 340 सब क्लॉज 1 ऑफ CRPC ऑफ 1898, आप समझ सकते हैं कि ये अभी तो एप्लीकेबल नहीं है. नाउ इट्स ऑब्सोलीट. नाउ इन दिस CRPC which was operational long before when the British were ruling, it provided that if a man was charged with an offence punishable with death, मतलब अगर उन्हें डेथ पेनल्टी दिया जाएगा, then the accused has a right to get a counsel, मतलब एक लॉयर, उन्हें एक लॉयर असाइन करेंगे. कौन? जो कि जज है उनके केस में, वो.
ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है सेक्शन 340 सब क्लॉज 1 ऑफ CRPC 1898 का, दिस वाज रिवर्स्ड इन अ केस Tara Singh versus State. Important case है, please make a note of it. In Tara Singh versus State, the Supreme Court said that legal aid is a privilege rather than a duty. मतलब ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज है जो कि कोर्ट कर भी सकते हैं ना भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बाइंडिंग चीज़ नहीं है जज पे, ठीक है. दैट्स वाई द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीगल एड सफर्ड, इट वॉज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट इन ऑल दीज ईयर्स. फिर से जब हमारे नया CRPC जो अब एप्लीकेबल है, विच वॉज इनैक्टेड इन 1973, जिसके बारे में आप कर चुके हैं इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हियर इन क्लास 12 एंड ऑल्सो इन क्लास 11, आप जानते हैं कि CRPC 1973 में इट फैसिलिटेटेड द स्टैट्यूटरी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्री लीगल एड. मतलब यहाँ पे फिर से ये जो लीगल एड की कॉन्सेप्ट है इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, एडवांस किया गया. एंड सेक्शन 304 सब क्लॉज 1, आप देख सकते हैं कि पहले जो CRPC था उसमें 340 सब क्लॉज 1 था, यहाँ पे 304 सब क्लॉज 1 है. ये गलती आप बिल्कुल मत करना, ठीक है. ये इंटरचेंज मत कर देना, आप अच्छे से धीरे धीरे लिख के पढ़ना, देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट एज इट इज़. तो अब नया जो CRPC है यहाँ पे, इफ़ द डिस्प्यूट इज़ इन अ सेशंस कोर्ट, तब अक्यूज को एक प्लीडर मतलब एक एडवोकेट दिया जाएगा. बस हो गया यहाँ क्रिमिनल लॉ के अंडर जो भी लीगल एड प्रोविजंस है. उसके बाद हम आते हैं लीगल एड बाय द स्टेट. अब जो भी लीगल एड प्रोविजंस है, फाइनली हमारे सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट जो है विद रिगार्ड टू लीगल एड वो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 1987. ये वाला जो एक्ट है ये है, ठीक है. तो अब ये जो एक्ट इनैक्ट हुआ था इन 1987, इसके पहले काफ़ी हद तक बहुत सारे चेंजेस हुए. वो क्या क्या है वो हम देखने वाले हैं. सबसे पहले 1960 में द यूनियन गवर्नमेंट इनिशिएटेड द नेशनल लीगल एड स्कीम, ठीक है ना. दिस डिड नॉट वर्क. आपके टेक्स्ट बुक में एक लैंग्वेज है जो कि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, आप यहाँ से मत पढ़ना टेक्स्ट बुक से. यहाँ पे मैंने जैसे नोट्स बनाए हैं उसे आप फॉलो कीजिए. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाट आई हैव रिटन डाउन. अगर थोड़ा सा हेजी लग रहा है स्क्रीन, जैसे कि कंप्लेंट्स आ रहे हैं कुछ, तो आप प्लीज़ वीडियो की रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ कर लीजिए बाय गोइंग टू द सेटिंग्स. यू कैन चूज़ अ हायर पिक्चर क्वालिटी, ठीक है. सो 1960 में एक नेशनल लीगल एड स्कीम बनाए गए थे बाय द यूनियन गवर्नमेंट, बट दैट डिडंट वर्क, इट फेल्ड, द इनिशिएटिव फेल्ड. Next, in 1973, the Union government once again created a committee to develop legal aid scheme for states. अब ये जो बनाया गया था that was under the guidance of Justice Krishna Iyer. यहाँ पे दो ही जजेस है बट उनके नाम 3 बार आएंगे. पहले जो जज है वो है जस्टिस कृष्णा अय्यर. उनके अंडर ये 1973 कमिटी बने थे to develop legal aid scheme for the states. It adopted a decentralized strategy with legal aid committees in district, states and center. बस इतना ही है, एक ही सेंटेंस में आपकी पूरा चीज़ आप समझा सकते हो एग्जाम में. नेक्स्ट वी कम टू अनदर कमिटी. इसकी कोई डेट कोई ईयर नहीं है इसकी, बट ये भी आप लिखेंगे इफ़ यू आर मेकिंग. यहाँ पे आप एक और पॉइंट बनाएंगे, ठीक है. इसके बाद एक और कमिटी बनाए गए थे विद जस्टिस PN भगवती एज इट्स हेड, विच sought टू क्रिएट 2 कंडीशंस. सबसे पहले तो ये कि इट सजेस्टेड लीगल एड कैंप्स एंड न्यायालयाज. न्यायालयाज मतलब लीगल एड कैंप्स, एक इनिशिएटिव, एक प्लेटफॉर्म जो कि लीगल एड देगा पोर को. ये जो न्यायालयाज है इसे हमें रूरल एरियाज़ में इस्टेब्लिश करना है. एंड नेक्स्ट पॉइंट, द सेकेंड रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी अंडर PN भगवती कि हमें लीगल एड जो भी प्रोविजंस है उसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूड करना है. ये दोनों प्रोविजंस थे ये नया कमिटी के. अब ये हो रहे हैं 1973 के काफ़ी साल बाद. नेक्स्ट वी कम टू 1980. यहाँ पे एक और कमिटी बनाए गए थे ऑन नेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड, अगेन विद जस्टिस भगवती एज इट सेड. इसके बाद जो है पार्लियामेंट इनैक्टेड द LSAA, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 1987 टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू सर्टन कैटेगरीज ऑफ पीपल. हो गया. ये जो 4 चीज़ें हैं, 4 नहीं इनफैक्ट 4 थिंग्स. सबसे पहले आप एक और पॉइंट मेंशन कर लेना कि 14th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन इट mooted, विच मीन्स ब्रॉट इन टू शार्प फोकस द आइडिया ऑफ लीगल एड. ये प्रॉब्लम को टू प्रोवाइड लीगल एड बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया हमारे 14th लॉ कमीशन. इसके बाद
सेकेंड स्टेप हो गया हमारे 1960 के नेशनल लीगल एड स्कीम जो था, जो कि यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया था। उसके बाद 1973 वाला कमेटी अंडर जस्टिस कृष्णा अय्यर, उसके बाद एक और कमेटी बनाए गए थे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, यू विल राइट, बाय PN भगवती। एंड द fifth step will be in 1980 a committee on national implementation of legal aid was made. Last but not the least, the Legal Services Authorities Act. बस हो गया, ये 6 पॉइंट्स है, ठीक है, उसके अंडर। नेक्स्ट वी कम टू लीगल एड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे सेम चीज़ की रिपीटेशन है पहले तो, पर आपको लिखना है एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो। आर्टिकल 39A, यहाँ पे कहा गया इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, थोड़ा सा फेंट हो गया है यहाँ पे जो राइटिंग है वो, तो सेम ही पॉइंट्स है गाइस कि इट सेटल्स द प्रॉब्लम ऑफ फ्री लीगल एड बाय डायरेक्टिंग द स्टेट टू प्रोवाइड free legal aid through legislations and schemes to the poor so that opportunity to secure justice are not denied to any citizen. अब देखिए ये चैप्टर में आपका जो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल 39A की, इतना बार दिया गया है कि अब अगर आप चैप्टर की रीडिंग भी करें 3-4 बार आप इसको रिवाइज करेंगे, तो इसके लिए आपका जो फ्लुएंसी है ऑन दिस, आपका जो मतलब you will be able to remember it better after you do this so many number of times. Next we come to one very important point which jurist Granville Austin pointed out. He said that the fundamental right provisions of the Indian Constitution as well as the directive principles of state policy, they point out towards a social revolution agenda. मतलब हमारे constitution की ये एक social justice orientation था based on equality. That's what is intended through these rights. अब देखो, जैसे कि M.H. हास्कर केस ने कहा गया, यहाँ पर हम फिर से पढ़ेंगे वही बात, जो हमारे टेक्निकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ है इंडिया में, दैट्स लार्जली इनएडिक्वेट। मतलब अगर हम टेक्निकली लॉ को इंटरप्रेट करें देन इट्स नॉट रियली फुलफिलिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तब हम सही तरीके से लॉ को इनैक्ट नहीं कर सकते, लोगों को जस्टिस नहीं दे सकते। हमें जो लॉ की स्पिरिट है उसको समझना है, देन ओनली वी कैन ड्यूली रिप्रेजेंट पीपल, वी कैन गिव देम जस्टिस। दैट वाज द मेन ऑब्जर्वेशन ऑफ द पीपल स्टडिंग द पार्ट ऑन लीगल एड। ठीक है, टेक्निकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज़ इनएडिक्वेट। देयर आर 2 इम्पोर्टेंट केस लॉज हियर, मानेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आप आगे भी पढ़ चुके हैं, एंड M.H. हास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र which was already mentioned in this chapter. So मानेका गांधी केस में क्या हुआ था, इट मेनली प्रोवाइडेड क्लैरिटी ऑन आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 क्या है वो आप अभी कमेंट में बताएंगे मुझे। इसके बाद राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी could be violated only by a fair, just and reasonable process. That's what is given by this case. But in India, fairness requires legal representation. जैसे कि हम कह रहे थे, हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे पैसा खर्च करना पड़ते हैं। इसीलिए if we don't have resources, that will go against me. अगर I am poor, then equality will definitely go missing, and that's where the necessity of legal aid comes in. और M.H. हास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में तो कहा ही था सुप्रीम कोर्ट ने कि जुडिशियल जस्टिस विद इट्स इंट्रिकेसीज, लीगल सबमिशंस एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस रिक्वायर्स लॉयर पावर। लॉयर्स की रोल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हमें उन्हें पे करना पड़ते हैं। अगर किसी भी एक साइड के पास ये रिसोर्सेस नहीं हैं, देन देयर इज़ अ फेलियर ऑफ इक्वल जस्टिस। ताकि ये ना हो, इसीलिए हमारे स्टेट हमें लीगल एड देते हैं, हमें लीगल सर्विसेज देते हैं। इसकी ठीक बात हमारे यहाँ जो सबसेक्शन है, दैट्स ऑन नालसा रेगुलेशन 2010. नालसा adopted the National Legal Services Authority Free and Competent Legal Services Regulation, and this amendment, or not amendment really, this act was passed pursuant to section 29 of the Legal Services Authorities Act of 1987. हमारा जो LSAA था, हम जानते हैं कि कितने सारे 6 स्टेप्स के बाद ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये इनैक्ट किया गया था बाय द पार्लियामेंट. अब अंडर सेक्शन 29 ऑफ LSAA हमारे जो नालसा है, नालसा फ्री एंड कॉम्पिटेंट रेगुलेशंस है, दिस वाज अडॉप्टेड. अब ये रेगुलेशंस है, दीज आर एप्लीकेबल ऑन लीगल एड कमिटीज़. अब कुछ कमिटीज़ है, लीगल एड की कमिटी है एट ऑल लेवल्स ऑफ आवर गवर्नमेंट.
सुप्रीम कोर्ट में एक लीगल कमिटी है, हाई कोर्ट में एक कमिटी है, सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट्स एंड तालुक्स में भी ऐसे लीगल कमिटीज़ है, एंड नालसा रेगुलेशंस आर एप्लीकेबल ऑन ऑल ऑफ देम। नालसा रेगुलेशंस कुछ ऐसे प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं ताकि हम लीगल एड की जो प्रोसेस है उसे स्मूथ बना सके। वी कैन इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स ऑफ पीपल। कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें कुछ लॉयर्स चाहिए ताकि वो पोर को रिप्रेजेंट कर सके। अब देखिए, ये जो लॉयर्स है ये हमारे जो पोर इंडिविजुअल्स है जिन्हें वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन कोर्ट्स, उनसे कोई पैसे नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पोर है, दैट्स वाई दे आर कमिंग फॉर लीगल एड। और फिर ये लॉयर्स की कैसे चलेगा? दे विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट, दे विल बी पेड बाय आवर कंट्री, they are salaried individuals of the state, and we have to select a panel of lawyers for providing free legal aid. NALSA can invite not NALSA, under NALSA the legal committees at all these levels in Supreme Court, High Court, districts, taluks, they can invite applications from legal practitioners with requisite professional experience. अभी जो पैनल है in all the cases, in all the legal committees of different levels, it will be prepared by the executive chairman of the legal services institution। ये जो सारे legal committees है at Supreme Court, High Court and district levels, यहाँ पे हर एक institution में एक executive chairman रहेगा। अब ये जो executive chairman है, he or she will consult the attorney general in case of the Supreme Court। अगर हम Supreme Court legal committee के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ की जो executive chairman है, he or she will consult the attorney general। अगर हम हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द लीगल कमिटीज़ ऑफ हाई कोर्ट विल कंसल्ट द एडवोकेट जनरल, गवर्नमेंट प्लीडर्स इन केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड तालुक्स, एंड बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट मोस्ट प्रोबेबली इन ऑल द केसेस। ठीक है, अब ये जो लॉयर्स होगा दे शुड बी एटलीस्ट एक्सपीरियंस्ड फॉर 3 years, कम से कम 3 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। एंड देयर पर्सनल ट्रेट्स लाइक कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी, सुटेबिलिटी, एक्सपीरियंस, इस सबको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा बिकॉज दे आर चोजन फॉर आवर कंट्री, दे आर चोजन फॉर प्रोवाइडिंग लीगल एड टू द पोर ऑफ आवर कंट्री। एंड नालसा रेगुलेशंस ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर मेंटेनिंग रिटेनर लॉयर्स। मतलब अगर एक केस चल रहा है तब अगर एक लॉयर रिटायर कर जा रहे हैं तो उनके गैप को फिल करने के लिए हम दूसरे लॉयर को हायर कर लेंगे। दैट्स द प्रोविजन फॉर रिटेनर लॉयर्स। 3 साल का उनका टर्म है एंड द पैनल्स हैज टू बी reconstituted every 3 years, that's what I said. Cases where पैनल लॉयर वांट्स टू विड्रॉ, हो सकते हैं कि एक लॉयर को नहीं करना किसी को रिप्रेजेंट, देन ही और शी कैन कम्युनिकेट his or her will or whatever the person wants to the member secretary of the legal service committee। फिर हमारे जो पैनल लॉयर्स है, ये जो सारे लॉयर्स है, दे आर बार्ड फ्रॉम टेकिंग एनी फी, रिम्यूनरेशन और वैल्यूएबल्स। मतलब अगर वो ऐसे पैसे ले रहे हैं पोर से तब तो मतलब दैट गोज़ अगेंस्ट द वेरी ऑब्जेक्टिव कि उन्हें क्यों अपॉइंट किया गया है, क्योंकि हमारे देश में लाखों गरीब लोगों का इतना पैसा नहीं है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। दैट्स वाई द स्टेट हैज़ क्रिएटेड द लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस। ये जो कमिटीज़ है दैट्स वाई दे आर क्रिएटेड, और ये कमिटीज़ के लिए लॉयर को भी इसीलिए चूज़ किया गया है ताकि दे कैन प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पोर। तो वो पैसा नहीं ले सकते फ्रॉम द पोर इंडिविजुअल्स होम दे आर रिप्रेजेंटिंग। अगर वो ऐसे कि कोई अनफेयर कार्य करे then the panel lawyers will be withdrawn for non-performance of duties and if their action goes against the object and purpose of the LSAA Act or the NALSA regulation। अब इनकी कैसे चलेगी? As I said, they will be paid by the state. The panel lawyers will be paid fees in accordance with the state regulations, and the NALSA regulation also suggests periodic revision of the honorarium। पीरियडिकली हम उनकी सैलरी को रिवाइज करेंगे, उनकी सैलरी जो है मतलब बढ़ते जाएंगे विद टाइम। दैट्स द प्रोविजंस अबाउट द पेमेंट ऑफ फीस टू दीज लॉयर्स। नेक्स्ट, सीनियर एडवोकेट्स जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है, एबल है, सक्सेसफुल है, वो सारे जो एडवोकेट्स हैं उनकी सर्विस भी लिया जाएगा इफ़ इट्स अ केस ऑफ ग्रेट पब्लिक इम्पोर्टेंस एंड when serious threats to life and liberty of the applicant exists। यही दोनों सिचुएशंस पे हम सीनियर एडवोकेट्स की सर्विस भी ले सकते हैं।
ना क्राइटेरिया फॉर गिविंग लीगल सर्विसेज, मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप ये पेज 177 से ना पढ़ें, आप डायरेक्टली पेज 182 से पढ़ेंगे। वहाँ पे जो लास्ट पॉइंट्स है रिगार्डिंग द सैलरी वो भी मैंशनड है, एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू मैंशन दैट वेन एवर यू आर गिविंग द क्राइटेरिया फॉर गिविंग लीगल सर्विसेज। ठीक है, तो पहले पॉइंट क्या है, if the person is belonging to the scheduled caste or scheduled tribes, then the person is liable to get legal services. उसके बाद if the person is a victim of human trafficking or begar under article 23, article 23 आप जानते हैं कि prohibits forced begar and exploitation, right against exploitation की provision है हमारे fundamental rights में। और if the person is a woman or a child, an industrial workman, a person with disability, यहाँ पे भी काफ़ी सारे लॉज है, पर मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा मतलब याद रखना मुश्किल है, आप कोशिश कीजिए, बट आई नॉट मैंशन बिकॉज दैट वुड कॉम्प्लिकेट द इंटायर नोट। ठीक है, तो मतलब आप सिर्फ रीडिंग पढ़ लीजिए कि द पर्सन with disability under section 2 of the persons with disabilities equal opportunities protection of rights and full participation act of 1995। ठीक है, उसके बाद victim of a natural disaster or any undeserved want and person with annual income of less than certain amount as prescribed by the government, अगर उनकी इनकम 9,000 रुपीज़ से नीचे है as prescribed by the state government, और अगर उनकी इनकम 12,000 रुपीज़ के नीचे है as prescribed by the central government, और this in case of Supreme Court legal service committees। ये भी पॉइंट है। नेक्स्ट, the person is mentally disabled or otherwise disabled, and if the person is in custody in protective homes and a psychiatric nursing home, यहाँ पे भी मैंने पॉइंट्स को लिख भी दिया है, if you can remember this you do, I have no problem with that। Now if an economically sound person is allowed to get free legal aid for being entitled or by being entitled by the eligibility criteria, तो उनकी जो केसेस है दैट शुड बी केयरफुली एनालाइज्ड। अगर एक इंसान जो कि ऑलरेडी वेल ऑफ है, जिनके पास इनफ और सफिशिएंट मीन्स है टू रिप्रेजेंट हिम और हर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, फिर भी वो हमारे पब्लिक ट्रेजरी को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, दे आर टेकिंग द स्टेट्स रिसोर्सेज, देन इन अ वे दे आर हाईजैकिंग द रियल सफरर्स। वो इंटायर जो स्ट्रक्चर है फॉर विच द इंटायर अरेंजमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग लीगल एड इज मेड, उन्हें वो वायलेट कर रहे हैं, उसे वो हाईजैक कर रहे हैं, एंड दैट शुड नॉट बी यूज्ड। लीगल एड शुड बी यूज्ड एज अ लास्ट रिसोर्ट। उसके बाद हम आते हैं द टू टाइप्स ऑफ लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज की भी दो टाइप्स है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्री लिटिगेशन लीगल सर्विसेज विच इंक्लूड्स ऑल दीज थ्री थिंग्स: लीगल एजुकेशन, लीगल एडवाइस, लीगल अवेयरनेस, प्री लिटिगेशन सेटलमेंट। इसे आप देखिए यहाँ पे जो है PAAE, आप इसे पाई ऐसे याद रख सकते हैं विद दिस निमोनिक। लीगल एजुकेशन, लीगल एडवाइस, लीगल अवेयरनेस एंड प्री लिटिगेशन सेटलमेंट, ऐसे इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है इसे याद रखना विदाउट अ निमोनिक, सो यू कैन डू इट in the way you want। And post litigation legal services means some money or some grants which are given to the poor once the dispute has formally started, once the litigation has formally started in the court, and as I said it should be used as a last resort। एंड यहाँ पे जो है ये हम रिपीट करने वाले तो नहीं है, क्योंकि क्राइटेरिया फॉर गिविंग लीगल सर्विसेज इन पेज 177 एंड एंटाइटलमेंट टू लीगल सर्विसेज इन पेज 182 इज एब्सोल्युटली द सेम। And just you need to remember one more thing, section 12 and 13 of Legal Services Authorities Act of 1987 gives us this particular criteria। ये आप लिखना, whether it's on the criteria to give legal aid or entitlement to legal service, आपको ये जो पॉइंट है सेक्शन की वो आपको लिखना है, एंड बाकी सारे पॉइंट सेम टू सेम हैं। इसके बाद we come to लोक अदालत। लोक अदालत में क्या होता है? We solve disputes, we settle disputes without charging any fee। ये हम आर्बिट्रेशन की चैप्टर में कर चुके हैं, राइट? नाउ ऑल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ मे ऑर्गेनाइज लोक अदालत्स एट डिफरेंट लेवल्स। यही बात है, दैट्स व्हाट इज़ रिटन इन आवर लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट। और ये देखिए ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बार आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में भी, कि हाउ कैन अ केस स्टार्ट इन लोक अदालत और व्हेन कैन अ केस स्टार्ट इन लोक अदालत। दो चीज़ें ये है यहाँ पे
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ए केस मे बी रेफर टू लोक अदालत्स व्हेन द पार्टी देयर ऑफ अग्री। अगर पार्टी अग्री करे तब एक केस जा सकते हैं लोक अदालत पे, और इट कैन गो थ्रू कोर्ट रेफरल। अगर एक पार्टीज है, अगर एक पार्टी है टू द डिस्प्यूट, दैट पार्टी मेक्स एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर रेफरिंग द केस टू द लोक अदालत, तब भी हम लोक अदालत में जा सकते हैं। अब लोक अदालत के पास कुछ पावर्स है विच इज ट्रेडिशनली द पावर्स ऑफ अ सिविल कोड अंडर CPC 1908। आप ये जो सेम एग्जैक्ट चीज़ है ये आप ह्यूमन राइट्स के चैप्टर में, जो भी हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, ये सब की सेम थिंग है। व्हेनेवर यू स्पॉट द वर्ड सिविल कोड, पावर सिमिलर टू सिविल कोड, आप आंखें बंद करके यही जो 5 पॉइंट्स है ये आप लिख देना। क्या है? समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ अ विटनेस, एग्जामिनिंग हिम और हर एन ओथ, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, रिसेप्शन ऑफ एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, requisitioning of any public record or document from a court or office belonging to the government, and prescribing any other matter, examining witnesses। ये सब एक सेम है, एकदम सेम है, ठीक है। और इस चैप्टर की लास्ट में जो लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2012। अब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे हेडिंग में 2012 है, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है इन पेज 184, इट मेंशंस लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो अगर आप इसे गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा कि बोथ ड्यूरिंग 2002 एंड ड्यूरिंग 2012 द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड। मतलब ये जो अमेंडमेंट है टू द ओरिजिनल लीगल सर्विसेज एक्ट, इसको अमेंड किया गया था बोथ ड्यूरिंग 2002 एंड ड्यूरिंग 2012। अब ये जो अमेंडमेंट था इन बोथ दीज ईयर्स, इसका पर्पस क्या था? पर्पस था टू ब्रिंग आउट चेंजेस इन लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट। कुछ चेंजेस लाना था। 2 ही इम्पोर्टेंट चेंज लाया गया। पहले तो परमानेंट लोक अदालत इस्टेब्लिश किया गया टू सेटल डिस्प्यूट्स कंसर्निंग पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज क्या है वो डिफाइन किया गया, वही था हमारे नेक्स्ट पार्ट, वही है हमारे नेक्स्ट पार्ट, सॉरी। द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज इंक्लूड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ पीपल एंड गुड्स थ्रू एयर, वाटर और रोड, टेलीग्राफ, टेलीफोन, पोस्टल सर्विसेज, सप्लाई ऑफ पावर, वाटर एंड लाइट, सिस्टम ऑफ पब्लिक कंजर्वेंसी एंड सैनिटेशन, सर्विसेज इन हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी एंड इंश्योरेंस सर्विस। ये जो 6 चीज़ें हैं, ये 6 चीज़ें these were specified in the amendment act। यही आपके सेकेंड पॉइंट है ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर एंड नाउ वी हैव द कंक्लूशन। देखिए इतना छोटा सा चैप्टर है, इसके लिए घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। लीगल एड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स, यहाँ पे ज़्यादातर आपका शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं कि ये दिया गया कि राइट टू लीगल एड स्टैंड्स फर्स्ट इन द स्पीसी ऑफ ह्यूमन राइट्स जस्टिफाइड। ऐसे अगर कुछ दिया गया तो आप क्या लिखेंगे वो हम करेंगे, और उसके बाद हम एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं ना। मिलियंस इन आवर कंट्री एंड एल्सवेयर टू दे आर डिनाइड जस्टिस, ये डी है, इफ़ इट्स लुकिंग लाइक ए आई एम सॉरी। Now it's denied, they are denied justice as they cannot afford the cost required for enforcement of rights। ठीक है। अब ह्यूमन राइट्स विच कैनॉट बी इन्फोर्स ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी की वजह से जो भी ह्यूमन राइट्स हम इन्फोर्स नहीं कर सकते, दे आर मीनिंगलेस एंड वर्थलेस, उनकी कोई मतलब ही नहीं है। दैट्स वाई द राइट टू एक्सेस जस्टिस इज सीने क्वा नॉन फॉर सोशल जस्टिस। सीने क्वा नॉन मतलब क्या? इंटरलिंक्ड, ठीक है। ये आप लिख लो आपके टेक्स्ट बुक में इफ़ यू डिडंट नो दिस। अब देखिए मेयरली एक एलिटिस्ट प्लेटफॉर्म से हम जो गवर्नमेंट के लेवल से बात करते हैं लीगल एड की, ये सही नहीं है। दैट डजंट हेल्प एनीवन। दैट्स व्हाई वी नीड टू क्रिएट प्रोविजंस बट दे आर इन्फोर्स्ड प्रॉपरली, ठीक है। इसके बाद हम जो क्वेश्चंस हम कह रहे थे कि आ सकते हैं, राइट टू लीगल एड स्टैंड्स फर्स्ट इन द स्पीसी ऑफ ह्यूमन राइट्स। यहाँ पे आप लिखेंगे कि ह्यूमन राइट्स आर मेयर पायस डिक्लेरेशन, मतलब ये सिर्फ बात करने के लिए कहा जाते हैं। विदाउट एनी लीगल एड दे आर नथिंग, दे आर लुक्रेटिव ओनली व्हेन इन्फोर्स्ड। ये वर्थवाइल या फिर लुक्रेटिव तभी है जब हम इसे इन्फोर्स कर सकते हैं।
Now, legal aid enables the accomplishment of human rights, makes them worthwhile for the poor. जब हम legal aid देते हैं तभी तो हमारे poor individuals कोर्ट में जाएंगे, अपने केस को रिप्रेजेंट करेंगे, तभी तो उन्हें जस्टिस मिलेंगे. That's why we should imperatively provide legal aid to the poor, and that is definitely done by our state to a great extent. यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि लिखा गया है, इन द प्रेजेंट सिस्टम जस्टिस इज नॉट गिवन बट सोल्ड. Because of court fees, procedural exchanges, contingent charges, these makes justice delivery very difficult for the poor individuals. Poverty is a main obstacle in the way of securing social justice, and the poor are the main sufferers of social justice. अब ये नेगेटिव टोन में आपकी चैप्टर ख़त्म होता है, बट आई वुड लाइक टू से अ पॉजिटिव थिंग कि हमारे जो पिछले 2 डिकेड्स है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लीगल एड दिया गया है पोर को. दैट्स व्हाई वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू वट एवर द गवर्नमेंट इज़ डूइंग फॉर अस, एंड वी शुड अप्रिशिएट इट. दैट्स इट विद दिस चैप्टर. आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा. योर बोर्ड्स विल बी फाइन, and we will meet in the next video on international context. Stay tuned by then. Bye bye.